So we are going to have another theorem today we are discussing. That is the second theorem of this unit. Its name is Lagrange's mean value Yeah, theorem. Lagrange's mean value theorem. Lagrange's theorem is different. Lagrange's method is different. Lagrange's mean value theorem is different. That's what we have to pronounce a full name. आगे चल के आपको yes यूनिट sir. 3 में लैग्रेंजेस मेथड भी आने वाला है. इसके साथ उसका कुछ भी रिलेशन नहीं है. ये ब्रदर्स भी नहीं होते लोगों. अंडरस्टैंड. तो सेम सेम मत समझिए. लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज डिफरेंट. लैग्रेंजेस मेथड इज डिफरेंट. लैग्रेंजेस सीरीज भी है, वो सब है, बट दिस इज टोटली डिफरेंट. यू हैव टू प्रोनाउंस अ फुल नेम. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वी हैव टू गो फॉर इट्स स्टेटमेंट. लुक एट दैट. व्हाट इज द स्टेटमेंट? Statement. Just we are connecting this Lagrange's mean value theorem also with our Rolle's theorem only. How to connect? Step number 1. Let f of x be a function. This is a basic requirement. In Rolle's theorem also we have the same requirement. Here also we have a same requirement. F of x be a function. F of x be a function such that some properties are existing here. Number 1. Same thing. First one will be same. F of x is, yes, come on, continuous. Come on, everyone, continuous on closed interval a comma b. Yeah, What do you mean by closed interval? We have to include the values of a and b also, right? yes sir. Now, second condition will also be same here. F of x is differentiable. Exactly. Differentiable on open interval a comma b. What do you mean by open? We do not include their boundaries, the values which are lie Yes sir. between a to b. No, we don't have third condition. Then there exists, we always write a symbol. There exists a point. We can also say at least a point. C belongs to a comma b. Means a Yes value sir. should lie between this interval. In what way? Such that there is a formula here. Yes sir. F dash F of dash c is is equal to f of b minus f of a by b minus a. This is the formula. There we have only f dash of c is equal to 0. And the mathematical meaning is a tangent parallel to x-axis. That is the meaning of the Rolle's theorem. अब ये Rolle's theorem में अपन क्या सर्च करें? We are searching a point from where we can draw the tangent. But यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन? वो आपको बताता हूँ. उसका भी यहाँ पर आप लिखेंगे अपन हेडिंग, इसका साइड हेडिंग. That is geometrical meaning. yes sir. Geometrically क्या बताना चाह रहा साइंटिस्ट? Geometrical interpretation. अक्सर एग्जाम में क्या हो रहा मालूम? स्टेटमेंट के साथ साथ इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग भी पूछ रहा. स्टेटमेंट बोल दो सिर्फ 2 लाइन का है ना जी, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, खत्म. फिर फॉर्मूला लिख दिया, हो गया. तो इसके लिए इसके साथ क्या कर रहा हूँ नहीं, थोड़ा एडवांटेज. अच्छा, इसमें रोल्स थ्योरम में क्या डिफरेंस अपन नोटिस करें, बोलिए. वी डोंट हैव द थर्ड कंडीशन हियर, करेक्ट? Yes sir. डोंट हैव द थर्ड कंडीशन. थर्ड कंडीशन इज व्हाट? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. यहाँ पर क्या है? वो कंडीशन नहीं है. इसका मतलब ये वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट कंडीशन. व्हाट डू यू मीन? वो कंडीशन का एडवांटेज लेंगे. एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर नॉट इक्वल हियर. अंडरस्टैंड हफ्सा? अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay, let me draw 2 figures here to give you the complete idea about this theorem. This is the coordinate axis I'm going to draw, x-axis and y-axis. See, I'm taking the advantage. What is the meaning of this? F of a and f of b are not equal. मतलब ये हो सकता, f of a छोटा हो सकता, f of b बड़ा हो सकता, या फिर ऐसा भी हो सकता कि f of a छोटा हो जाए, f of a बड़ा हो जाए और f of b छोटा हो जाए. ओके, तो वो Yes sir. एडवांटेज अपन लेके
इसको आसानी से प्रूफ कर ले सकते। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस वी हैव टू ड्रॉ, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज एफ ऑफ ए, this is b point lies on x axis and this is f of b we take, ठीक है ना। वो आई एम टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दैट पॉइंट। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है, तो ये हो सकता है कि एफ ऑफ बी छोटा होके एफ ऑफ ए बड़ा हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि एफ ऑफ ए बड़ा हो जाएगा, एफ ऑफ बी छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट को यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ओके, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी बोले ना, तो एक कर्व ड्रॉ करेंगे, एक कर्व ड्रॉ करेंगे, दिस इज द पॉसिबल कर्व। यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी वाला एक कर्व बता रहे, ये होगा। अब आप देखिए, आई वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। सपोज दिस इज ए, कैपिटल ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है ए एंड एफ ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज टेकन एज बी, सो बी कॉमा एफ ऑफ बी। कोई एक फिगर पे बात करें तो इनफ है, इसमें भी वही सेम काम करते हैं अपन। अब एक काम करेंगे कि ए और बी से पास हो रहा, सो एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे। ये देख, a straight line which is passing through A and B. ये हो गया a straight line which is passing through A and B. अपन क्या कर रहे हैं, this line is available already. We are going to find out, we are going to search a line which is parallel to this line. ए बी से पैरेलल हुई से एक लाइन, एक टैंजेंट को अपन फाइंड आउट कर रहे हैं लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से। एंड प्लीज नोट दैट दिस tangent is not parallel to x axis, x axis के पैरेलल नहीं है वो, है क्या, दिख रहा क्या फिगर में आपको, नहीं। Yes, नहीं sir. दिख रहा। so this is f dash of c, f dash of c is this one, and there we have a straight line passing through these 2 points, and now you see these 2 lines are parallel. If you see the figure also, दोनों parallel दिख रहे ना। अपन क्या करेंगे, a value is equal to a comma f of a and b value is what are the coordinates of b, b comma f of b, ये होता ना। स्लोप कैसा फाइंड Yes, आउट करते sir. बोलिए, x1 y1 x2 y2, how to find out slope, tell me। slope m1 passing through 2 points y2 minus y1 by x2 minus x1, do you remember this formula? Yes, sir. Slope of the straight line passing through 2 points, y2 value is f of b here, minus y1 is f of a here by b minus a, b minus a, ओके। ये m1 की वैल्यू होगी। m2 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है आपके पास, m2 is Yes, f sir. dash of c. Now you see these 2 lines are parallel, so we can say m1 is equal to m2। कब होते लाइंस पैरेलल, जब स्लोप्स इक्वल होते। हियर m2 वैल्यू इज f dash of c and m1 value is f of b minus f of a by b minus a, which is the proof of this theorem। ज्योमेट्रिकली अपन ये फिगर भी अगर आप ड्रॉ करें एग्जाम में, दैट इज इनफ, ठीक है। सो एक्चुअली लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से अपन क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग a tangent, what we said, not tangent, we are finding a line which is parallel to AB। AB से पास, Okay. AB से पास हो रहा, सो लाइन की एक पैरेलल लाइन अपन फाइंड आउट कर रहे हैं लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से। तो थ्योरम का एडवांटेज भी वही है। ये हो गया आपका स्टेटमेंट, ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब देखेंगे इसके ऊपर कुछ बेस करके कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में खाली स्लोप फाइंड आउट करके अपन एक लाइन को फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज हियर अ पॉइंट सी वी आर गेटिंग व्हिच इज पैरेलल टू AB, दैट्स इट। अब एक क्वेश्चंस देखेंगे अपन, क्वेश्चंस देखिए आप, क्वेश्चंस एग्जाम में कैसा पूछता। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आई एम टेकिंग, या तो आपको स्टेटमेंट पूछेगा
या ज्योमेट्री का मीनिंग पूछेगा या प्रॉब्लम पूछेगा. वेरीफाई. Lagrange's mean value theorem for f of x is equal to I think I should take f of x here in the next line. मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, देखिए अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस. Yeah, I got the question. Number 1. f of x is equal to, देखो अच्छे से, f of x is equal to, we have a question here, look at that, x into x minus 1 into x minus 2, x into x minus 1 into x minus 2, and here the interval is on 0, 1/2. ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली 2023 के फ्रेश एग्जाम में पूछा था. Verify Lagrange's mean value sir. theorem for this is f of x and here the interval. Now start our work. Solution. चलिए बोलिए क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए. पहले तो f of x को अपन थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे. ऐसा क्लियर करेंगे, ये x को ऐसे ही रहने दीजिए, Continue. इन Yes, दोनों sir. मल्टीप्लाई करिए. एक्स स्क्वायर, ये -2x minus x is -3x plus 2. x into x स्क्वायर, x into 2 is -2x और ये -x, दोनों मिला के -3x और ये माइनस इंटू माइनस प्लस. Yes, sir. This is equal to, we get a polynomial x cube minus 3x square plus 2 means Plus what 2x. actually we are getting like this, a polynomial I am getting. So 2x. Understand? We are getting a Okay. polynomial. Sir. अब इसका डेरिवेटिव भी कर लेंगे और Sir, दोनों 2x. sorry 2x, writing mistake. f dash of x we find out. Derivative of x cube is 3x square minus 3 as it is. Minus x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता 2x, 2x का डेरिवेटिव होता 2. अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता किसी को तो मेरे को बोल दीजिए प्लीज. 3x स्क्वायर, मैं थोड़ा और डिटेल में जाके बता दूं. -6x plus 2. Yes, sir. ठीक है. सो वी आर गेटिंग सम आंसर. तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे अपन, देयरफॉर f of x is कंटिन्यूअस भी हो रहा क्योंकि वो पॉलिनोमियल है ना. कंटिन्यूअस भी हो Yes, रहा sir. एंड डेरिवेटिव का आंसर इन्फिनिटी नहीं आ रहा, सो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो रहा. एंड डिफरेंशियल ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1/2 and open interval 0, 1/2, and respectively we write that. Complete the sentence. Respectively. Understand? यहाँ तक कुछ डाउट है? कुछ डाउट है यहाँ No तक? doubt. नो डाउट. चलिए कंटिन्यू करेंगे. नाउ वी हैव टू चेक द दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गए. सो वी से बाय Lagrange's mean value theorem, there exists a point C belongs to A is 0, B is 1/2. सर, जी बोलिए. ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल क्यों डाले अपन? देखिए अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहे, क्लोज और ओपन के ऊपर ही बात कर रहे हैं ना. ओके ओके ओके. रोल थ्योरम में भी तो वही करे अपन, क्लोज एंड इंटरवल. मैं क्या करा मालूम, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी को अलग अलग नहीं करके एक ही बार कर दिया. यहाँ पर मैं ओके. पॉलिनोमियल लेवल के कंटिन्यूअस बता दिया. आपको एक आइडिया हो गया ना जी रोल थ्योरम से, इसीलिए मैं एक ही बार वो दो काम एक ही बार कर दिया. हाँ 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 हाँ, समझ गई सर. आइडिया सच दैट यस सर. नाउ द फॉर्मूला. आपको जैसे जैसे आइडिया होता रहता ना, मैं स्टेप्स स्किप करके आगे आगे क्या पढ़ाते जाता हूँ. f of b माइनस 2 का टेबल याद हुआ तो 3 कर सकते हैं अपन. याद हो गया परफेक्ट बोल के, b माइनस ए. फिर से बार बार 2 का टेबल बताने की जरूरत नहीं रहती. Now f dash of c value we can get from here now. Can we get it? Yes, sir. Tell me what Yes, is that? 3c square Minus 6c 60 plus 2 is equal to f of b. Our b value is
1/2 और a वैल्यू इज 0। तो मैं एक काम करता हूँ, या रफ कॉलम में अपना एफ ऑफ एक्स क्या है देखो, x इंटू x-1 इंटू x-2 है अपनी ओरिजिनल वैल्यू। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मतलब 1/2 रख के चेक कर लेता हूँ क्या आंसर आ रहा। दिस इज 1/2। थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, 1/2 - 1 इंटू 1/2 - 2। दिस इज 1/2 एज इट इज। ये 1/2 - 1 बोलते हो, वन में से हाफ में से वन निकाले तो -1/2 आता है इधर। और यहाँ पर अगर अपन 2 LCM ले लिए तो 2 × 2 = 4, तो -3/2 आ जाता है। अब आप देखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2। 3 कैलकुलेटर भी आपके पास अलाउड रहता। देखिए अगर आपको यहाँ पर ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो रहा तो आप इमीडिएटली, मैं बोला था आपको इससे पहले, मेरी हर क्लास में आप कैलकुलेटर साथ में रख के बैठिए, कब किसकी जरूरत पड़ जाए मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं इसको ओके वेरीफाई कर ले सर। रहा Yes, हूँ sir. कैलकुलेटर के साथ में। आप लोग भी कैलकुलेटर यूज करना है, और आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपको कैलकुलेटर ऑपरेट करने आना चाहिए। अदरवाइज मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते कैलकुलेटर तो है बट ऑपरेट करने नहीं आता। द आंसर इज एग्जैक्टली 3/8 आई एम गेटिंग। तो ये वर्क की जरूरत यहाँ पर मेरे को नहीं है, मैं सिर्फ आपकी सेटिस्फैक्शन को कर रहा हूँ था, अभी तो मैं नहीं करने वाला हूँ। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 3/8 माइनस एफ ऑफ ए वैल्यू 0 है तो इसका एंटायर आंसर 0 होता, देख लो आप। 0 इंटू एनीथिंग Yes, इज sir. 0 बाई b - a, b वैल्यू इज 1/2, 1/2 - 0 भी। चलिए ठीक है लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे। 3c² -6c + 2 is equals to, this is 3/8 as it is. Second fraction will become reverse, 2/1. This is 2 ones are 2 fours are cancel. 3/4 we can take this side only. 3c² -6c + 2। ये 3/4 को ये साइड ला लिए तो -3/4 हो जाता है, इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, या नहीं तो 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। सबको 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 3 12c² -6 4 24c +4 2 8 -3 is equal to 0। So we get, नहीं 4 से हाँ सबको मल्टीप्लाई कर, 12c² -24c and this is becomes +5 is equal to 0। Now I am getting a quadratic expression in terms of c। इसके फैक्टर्स करेंगे कैलकुलेटर से। आप लोग वापस कैलकुलेटर ले लीजिए हाथ में, और मैं जो स्टेप्स बोल रहा ले हूँ लिया सर। फॉलो करिए स्टेप्स। गो टू द सेटअप मोड, यस सर। where you find equation fifth is the option। yes, इक्वेशन फंक्शन। हाँ इक्वेशन में जाके फिफ्थ ऑप्शन टैप करना। कौन सा ऑप्शन? सेटअप मोड में जाइए, पहले तो सेटअप मोड में जाइए, फिफ्थ ऑप्शन, पहले COMP आ रहा, दूसरे में कॉम्प्लेक्स आ रहा, थर्ड में स्टैटिस्टिक्स आ रहा, फोर्थ में बेस आ रहा, फिफ्थ में इक्वेशन आ रहा। देखिए है वो कैलकुलेटर आपके पास, क्या दूसरा यूज कर रहे हैं आप? 991EX है मेरे पास। तो ये ऑप्शंस आपको सेटअप मोड करें तो 8 ऑप्शंस नहीं आ रहे। इक्वेशन फंक्शन में नहीं आ रहे सर। ये कैलकुलेटर आपके पास जो है वो इंजीनियरिंग में यूज नहीं होता है। कुलसुम आपके पास कौन सा है? सर अभी तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है सर। नहीं है तो ठीक है, मैं फिलहाल तो कर दे रहा हूँ। मैं आपको कैलकुलेटर के सजेशन पहले ही दे दिया था। इक्वेशंस को टाइप करना और इसके बाद इसके वैल्यूज यहाँ पर लिखना, इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको सेंड करता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यूज इसके मिल रहे हैं ना, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। मेरे को एक वैल्यू मिल रही है यहाँ पर, सी के 2 वैल्यूज मिलते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सी इज इक्वल टू, आई एम गेटिंग 1.7638। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ सी आई एम गेटिंग। और एक वैल्यू इसकी मेरे को मिल रही, दैट इज सी इज इक्वल टू 0.2362। विच वैल्यू एग्जिस्टिंग इन अवर इंटरवल, टेल मी कौन सी वैल्यू। जीरो, देखिए अगर आप इसका फिगर अगर इमेजिन करें तो ये कुछ ऐसा ऐसा फिगर बन सकता है इसका।
सपोज यहाँ पर 1 यूनिट यहाँ पर है समझो। हाँ सर, तो आई ना 1.7637 आई मेरे को। हाँ, बोथ ऑफ द वैल्यूज आर एग्जिस्टिंग इन अवर इंटरवल। देखिए, यहाँ अगर अपन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऐसा ले लिए, तो एक टैंजेंट मिल रहा है आपको। देखिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल रहा है, देखिए करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट 0.236 मिल रहा है, देखिए मिल रहा ना, यस सर। पैरेलल टू ए बी ऐसा मिल रहा है। तो सिंस वी हैव टू राइट बिलोंग्स टू द इंटरवल 0, 1/2, then finally hence Lagrange's mean value theorem verified. This is the process we have to adopt. कुलसुम, मैं आपको इससे पहले भी बोला था ना, कैलकुलेटर साथ में रख के क्लास सुनना बोल के। यस सर, वो एक्चुअली मैं कहीं और हूँ मैं कभी भी मेरी तो। क्लास M1 में जब भी आपको पढ़ाऊंगा, शायद M2 नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको M1 ही पढ़ा रहे थे फिलहाल अपन। तो जब भी क्लास यस रहेंगे ना, सर। कैलकुलेटर साथ में रख के पढ़िए आप। कब इसकी जरूरत पड़ जा सकती मेरे को नहीं मालूम है। अंडरस्टैंड? यस सर। तो साथ में कैलकुलेटर रखिए, ये आपको नहीं तो नहीं समझ में आते जी टॉपिक से। जी सर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया था आपका। और एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अभी। इसमें कुछ डाउट है तो बताइए। कुछ डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज वी शुड गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। नो सर, डाउट नो नहीं है। डाउट। ओके, so let us go for one more question of this सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। तो कॉज इनवर्स का क्वेश्चन बताइए। जी हो, कल आपके पास थे नहीं, वो बताइए। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन इज प्रूव दैट वो नोटबुक बताइए जिसमें मैं कर सामने रख दी। प्रूव दैट, क्वेश्चन है π/3 माइनस 1/5√3, 1/5√3 is greater than cos inverse of 3/5 is greater than π/3 minus 1/8। ऐसे अपने पास टोटली 5 क्वेश्चन है। एक कॉस में है, एक साइन में है, एक टाइन में है, एक लॉग में है, एक ई पावर में है। पूरे 5 करना, कैसा तो भी एक आधा। तो ये तो पहला वाला कर रहा हूं मैं, कॉस का। साइन का भी करना है, टाइन का भी करना है, लॉग का भी करना है, ई पावर एक्स का भी करना है। अब ये एक चीज, आपको एक और चीज नोटिस करना है यहाँ पर क्वेश्चन में। कभी कभी लकीली आपको दे देता कि भाई लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से करो बोल के। अदरवाइज क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैक्सिमम तो ऐसा ही होगा, प्रूव दैट बोल के दे देगा, आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा कि आपको कौन से थ्योरम से करना है। तो जब भी अपन इनइक्वालिटी के जी प्रॉब्लम सर। को सॉल्व कर रहे हैं, इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम जैसे ग्रेटर देन भी हो सकता या लेस देन भी हो सकता, उस टाइप के क्वेश्चन को अपन सिर्फ और सिर्फ लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से ही कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे थ्योरम से वो पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंड? यस तो सर। अपन यस इसका सर। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू अप्लाई द लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम? कम ऑन टेल मी। मैं ये पॉइंट क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था। बेसिक रिक्वायरमेंट टू अप्लाई दिस थ्योरम। क्या बोलते हैं सो, वो ग्राफ पे। एफ ऑफ एक्स वी रिक्वायर्ड, है ना? यस। एफ ऑफ एक्स होना ना जी। यस सर। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए एफ ऑफ एक्स आप क्या लेना, एफ ऑफ एक्स मगर है नहीं, अपने को प्रूफ करना है कॉस में। तो अपन लेना कॉस, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स शुड बी टेकन एज एफ ऑफ एक्स। अब आप बोलेंगे सर ये देखिए, ये स्टेटमेंट देखिए आप, ये देखिए एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। बेसिक रिक्वायरमेंट इज एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। एफ ऑफ एक्स पहले एज्यूम करना। दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट आपको चाहिए वो इंटरवल। इंटरवल है क्या क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं तो भी? नहीं है ना? है क्या? नहीं नहीं है। सर। नहीं है तो अपन जनरल इंटरवल ले लेंगे A, B। क्लियर? अब अपना यस। यस वर्क सर। स्टार्ट करेंगे, अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनता कॉस का, वो भी कंटिन्यूअस रहता। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कोई भी एग्जामिनर आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए नहीं बोलेगा ऑन क्लोज इंटरवल A,
डिफरेंशियबिलिटी तो आपको, डेरिवेटिव तो आपको आना चाहिए। डेरिवेटिव के फॉर्मूला में आप देखें, डायरेक्ट फॉर्मूला है cos इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता -1/√1 - x², राइट? ये है f डैश ऑफ यस x। सर। सो एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल a कामा b। सो थर्ड कंडीशन तो है ही नहीं, है क्या? नहीं है ना? नहीं। Therefore, f नहीं of सर। x satisfies क्या था लिखना बोला मैं? ऑल कंडीशंस ऑफ, बाय लैग्रेंज मीन वाले थ्योरम भी आप लिख सकते हो, ऐसा भी लिख, दोनों भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। f satisfy all conditions of LMVT, Lagrange's mean value theorem, then there exists a point, बोलिए क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? C belongs to A comma B such that, फॉर्मूला बोलिए, come on everyone, f dash of C is equal to, come on, एफ f ऑफ of बी B, डैश ऑफ माइनस बी माइनस very good, f एफ of B minus एफ ऑफ ए A by B बाई minus बी A। माइनस ए। ओके, चलिए कंटिन्यू करेंगे। f डैश ऑफ C की वैल्यू कैन वी गेट फ्रॉम हियर, यहाँ से लेके आ सकते हैं अपन, ला सकते हैं ना? बोलिए, ला सकते हैं ना? यस सर। -1/√1 - x की प्लेस पे c रख देना बस, इज इक्वल टू f ऑफ b की वैल्यू, f ऑफ x तो ये है, f ऑफ b क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ b हो जाएगा, है ना? माइनस f ऑफ a क्या हो जाएगा? यस सर। cos इनवर्स ऑफ a हो जाएगा भाई b माइनस a। ठीक है, इसको एक बना के रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 बोले। अब आप देखिए, एक पॉइंट नोटिस करिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ये पॉइंट क्या है, क्या है? कैन यू रीड दिस? C belongs सी to बिलोंग्स टू ए बी A comma B, देयर एक्सिस्ट। नहीं खाली इतना ही बस, C belongs to A comma B का what is the mathematical meaning of this? The mathematical meaning of this is the value of C should lie between A and B। A मतलब होता ना A और B ओपन इंटरवल में है, मतलब A और B के बीच की कोई वैल्यू है वो, अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, अब क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मेट इसके अंदर बनाएंगे। ऐसा C को देखो कहाँ दिख रहा उन्हें, ये C पूरा ये घेरे में दिख रहा है, वैसा घेरा बनाएंगे इसका अपन। कैसा करेंगे? A², पहले तो स्क्वायर करेंगे, A² इज लेस देन C² इज लेस देन B², है ना? तो नेक्स्ट यस स्टेप सर। इज माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसा ही मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन इज चेंजेस टू ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी चेंज, है ना? माइनस से करते कि इनइक्वालिटी चेंज, कैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 1/2, 1/2 इज लेस देन 1, -1/2 कर दिए तभी लेस देन 1, नहीं नहीं ऐसे नहीं, एग्जांपल ये ले लीजिए, 1 1 और ये -1, इनइक्वालिटी चेंज हो रही है ना इसमें, यस सर। वैल्यू को नेगेटिव करते कि छोटा बड़ा हो जाता ना, तो -C² is less than -B²। सी लुक एट, 1 अगर ऐड करे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। स्क्वायर रूट करने से भी क्या भी इफेक्ट नहीं होता। ये तीन काम एक साथ कर सकते हो, बट रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे अपन 1/, फिर से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1 - A² यस सर। इनइक्वालिटी चेंज, ग्रेटर देन विल बी चेंजेस टू लेस देन 1/√1 - C²। क्या हो जाता बोलिए? या कुछ राइटिंग मिस्टेक करे क्या अपन? यहाँ पर अपन राइटिंग मिस्टेक करे, हाँ सर। लिखने का गलती करे अपन, यहाँ यस, यहाँ पर लिखने का मिस्टेक करे, राइटिंग मिस्टेक इधर हुई। -C² less than will be changes to greater than -B²। So adding 1 here and here, taking square root. Now 1/√1 - A² greater than will be changes to less than 1/√1 - C² greater than will be changes to less than 1/√1 - B²। Okay, now we have to multiply one more time with minus sign। तो माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा फिर से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी,
Yes, Less sir. than will be changes to greater than. Minus 1 by under root 1 minus c square. Less than will be changes to greater than. Minus 1 by under root 1 minus b square. आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है सीधा सीधा इसमें लाके इसका फ्रेम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. फ्रेम बना दिए, लाके सब्स्टिट्यूट कर दो. इज ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ b माइनस cos इनवर्स ऑफ a. सबको समझ में आ रहा भाई? यस सर। Yes, sir. by b minus a is greater than minus 1 by under root 1 minus b square. 1 minus b square. अब ये b minus a को निकालने के लिए इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, दोनों साइड b minus a से मल्टीप्लाई करते. वो काम मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ. मल्टीप्लाई b minus a ऑन बोथ साइड्स. माइनस तो बाहर है ही, बाय अंडर रूट 1 minus a स्क्वायर. और इधर क्या है भाई, ग्रेटर देन है. ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ b माइनस cos इनवर्स ऑफ a बाई, बाई सॉरी, बाई तो कुछ भी नहीं है. ग्रेटर देन माइनस ऑफ b माइनस a बाय अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर. सो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस a माइनस b बाय रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ b माइनस cos इनवर्स ऑफ a is greater than a minus b by root 1 minus b स्क्वायर. ठीक है. कभी कभी आपको ना रिजल्ट यहाँ तक ही प्रूफ करने के लिए बोलता तो यहीं हो जाता है, बट आप यहाँ पर अपने को कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट पूछ रहा, वी हैव टू असाइन सम वैल्यूज हियर. क्या असाइन करेंगे आप, वो लॉजिक है. अब आपको प्रूफ क्या करना है वो देखो, वो लॉजिक से आपको मिल जाता है. यहाँ पे जो ब्रैकेट cos इनवर्स के साथ दिख रही है वो क्या है, कैन यू रीड दिस? 3/5। वो आपकी b की वैल्यू होती है हमेशा. ब्रैकेट में जो भी है वो b की वैल्यू. b तो मिल गया आपको 3/5. अब एक क्वेश्चन आ रहा है होता सर a क्या लेंगे. अब यहाँ देखिए आप, ये क्या है, ये कैन यू रीड दिस? 5/3. cos पाई बाई 3 क्या होता है? cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 का मतलब 180/3 60. cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो a की वैल्यू हो गई 1/2. ये लॉजिक है उसके बिहाइंड. a और b ले जाके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 1/2 माइनस 3/5 बाई रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर मतलब 1/4 is greater than cos inverse of b value is 3/5 minus cos inverse of a value is 1/2 is greater than a value is 1/2 minus 3/5 by root over 1 minus b square means 9/25. ठीक है. इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ रहा वो आंसर है 1/5√3. ये थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिए. 1/5√3 नहीं आता, इसको सॉल्व करें तो आंसर ऐसा आता. देखिए मैं बता देता हूँ आपको क्या आता. ये आंसर आपको ऐसा आता, √3/15 आता उसको सॉल्व करें. बट अपन इसको अगर सिंप्लीफाई करें, √3/15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू √3 इंटू √3. चलिए नेगेटिव में आंसर आता, यहाँ पर भी नेगेटिव में, ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं आप. आंसर ये आता 1/5√3 माइनस के साथ ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ Yes, sir. 3/5 minus cos inverse of 1/2 can be written as cos pi/3. cos pi/3 1/2 होता, अभी बोला मैं आप, is greater than this is minus 1/8. जी बोलिए. ये रूट अंडर 1 माइनस 1/4 कैसा जी. आया, और 1 माइनस 9 ये बाई a की वैल्यू 25? कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, 1/2 है ना. हाँ a है। is 1/2, b is 3/5, 1 minus a स्क्वायर, इसको स्क्वायर करें तो क्या होता है, एक. 1/4। यस दैट इज 1/4. और ये यहाँ पर 9/25 स्क्वायर कर दिया मैं. 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25. ओ ठीक है ना. यस सर। ये Yes, cos sir. एंड cos इनवर्स कैंसिल. अब इसमें बच गया -5/3. वो -5/3 को निकालने के लिए दोनों साइड +5/3 ऐड करना. यहाँ पर भी pi/3 minus 1/5√3 is greater than cos inverse of 3/5
ओके, इज ग्रेटर देन पाई/3 को दोनों साइड ऐड करना, वन यहाँ भी पाई/3 माइनस 1/8। एंड नाउ लुक एट दिस वन, यही अपने को प्रूफ करना है, देख लीजिए आप। यस सर। हो गया ना प्रूफ? ठीक है। यस सर। मेरी लैपटॉप की बैटरी भी खत्म हो रही है और क्लास थोड़ा 3 मिनट पहले ही खत्म कर रहा हूँ मैं। कुछ अगर इसमें डाउट रह रहा ना तो आप नेक्स्ट सेक्शन में पूछ लो प्लीज। ये प्रॉब्लम में कहीं अगर यस डाउट रह सर। जा रहा ना तो नेक्स्ट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। और इसके आगे के इसके जो ओके सर। मैथमेटिकल ब्रदर्स है ना, अभी कॉस में करा, साइन का भी करता हूँ मैं आपको, ई पावर का भी करता हूँ, लॉग का भी करता हूँ, टैन का भी करता हूँ। वो करने से इसका और एक अच्छे से आइडिया हो जाता है, ठीक है ना। सर ये फर्स्ट वाला सॉल्व करे 1/2 माइनस 3/5 बाई रूट अंडर 1 माइनस 1/4, तो उसका -1/5√3 दिखे आप यहाँ। यहाँ जी, कैलकुलेटर में √3/15 यहाँ आ रहा, इधर देखो आप, स्क्रीन -√3। यहाँ स्क्रीन इधर देख रहे हैं आप, इधर देखो मैं क्या बोला, कैलकुलेटर में क्या आता बोला, आंसर देखो जरा। ओह अभी बोला था ना अच्छा। ये आता बोल के बोला, और इधर सिंपलीफाई करके भी बता दिया। मैं इसलिए जरा जल्दी कर रहा हूँ, वो बैटरी खत्म हो रही थी मेरी कैलकुलेटर में, मैं चार्जर कॉलेज में ही भूल के आ गया। अरे ऑलरेडी बोल दिया मैं, कैलकुलेटर में ये आंसर आता है, इसको सॉल्व करे बाद ये आता बोल के पहले ही बता दिया, ओके सर। ठीक है ना। मैं आप लोगों को 1% भी डाउट नहीं है जैसा पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह। इसका यस वीडियो सर। भी भेज देना सर आप। आप वीडियो आपको भिजा दिए थे ना रोल्स थ्योरम का, इसका भी भिजा देते। ओके सर। अब इसका एक और चार्जर है मेरा घर पे है, वो लगाए बाद मैं भिजाता हूँ, अभी तो नहीं भिजा सकता, ठीक है। यस सर। तो विल एंड अप दिस सेशन नाउ। यस सर। ओके, थैंक यू, यस सर। विल एंड अप नाउ। थैंक यू सर।